ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آئیے عزیز مسلمانوں، پھر سے اپنے مقصد اصلی کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ علم و ہنر کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، کہ علم و ہنر کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم۔ اب میں آواز دیتی ہوں سعدیہ اپی کو کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ سعدیہ اپی مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ رب کریم نے مختصر سے وقت کے لیے ہم سب کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر شمع فرمایا۔ رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ مجھے بھی آپ سب کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی حق پانے اور اس تعلیم کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا فرما دے اور اپنی بارگاہ میں ہماری ان باتوں کو قبول فرما دے۔ کچھ باتیں عرض کروں گی، اس سے پہلے چند اشعار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اشعار کے ساتھ تعلیل ہوا ہے۔ میں پیش کرتی ہوں، آپ بھی پیش کریے۔ نبی پاک پر درود پڑھنا ایک بڑی عبادت ہے۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہے جو آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نام ہے ان کا فریاد فریاد، ذکر ہے ان کا عالم عالم، نام ہے ان کا فریاد فریاد، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھ میں پرہم، یاد انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں اتارا، اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان یا ایھا الناس ان کنتم فی الغیب من البعث وانا خلقناکم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة۔ میرے رب نے فرمایا دنیا میں انسانوں کے آنے کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ایک ماں اور ایک باپ کو ذریعہ بنایا۔ اللہ نے رحم باپ کے صرف سے قطرے کو نکالا، پانی کو نکالا، ماں کے رحم میں پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوکھڑا بنایا، اللہ نے اس میں ہڈیاں پیدا کی، اللہ نے ماس چڑھایا، اللہ نے اعضا بنائے، اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی الغیب من البعث وانا خلقناکم من التراب ثم من نطفة ثم من علقة۔ دوسری جگہ میرے رب نے فرمایا الم نجعلہ عینین والانسان شفتین وہدینہ النجدین۔ یہ آنکھیں اللہ نے بنائی، یہ زبان اللہ نے بنائی، یہ چہرہ ہمارا اللہ نے بنایا۔ انسان دنیا میں آیا اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا امت سبیرا یسرا، اللہ نے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا۔ انسان دنیا میں آیا، جب اس نے اپنی نگاہوں کو کھولا تو اس نے اپنی نظروں میں ایک
बच्चा बड़ा हुआ, इसके दिलो दिमाग में ये बात ऑटोमेटिक समा गई कि इसकी दुनिया के अंदर कोई कदर करने वाला है, तो इसके माँ बाप है, या इसका भाई है, या इसका कोई रिश्तेदार है, इस दुनिया के अंदर अपनी माँ की कदर करने वाला बना, अपने बाप का कदरदान बना, अपने माँ की इज्जत करने वाला बना, अपने बाप का कदरदान बना। इंसान जब बच्चा बड़ा हुआ, अपने माँ बाप की कदर करने वाला बना, अपने दोस्तों का कदरदान बना, अपने भाई का कदरदान बना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इस आयत में अपने बंदों से एक शिकवा किया है, एक शिकायत की है। मेरे रब ने फरमाया, मेरे बंदों, बनाया मैंने है, अल्लाह ने बनाया। माँ बाप को तो अल्लाह ने एक जरिया बनाया, माँ बाप ने पैदा नहीं किया, पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की, माँ के लिए बनाने वाली ज़ात अल्लाह की, मेरे आज़ा को बनाने का काम मेरे रब का, मैं तेरी आँख का काम पैसे देगा ना, मेरे रब ने फरमाया, मेरे बंदे बनाया मैंने है, संवारा मैंने है, सजाया मैंने है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। दिल बनाया, तुझे संवारा, तुझे सजाया, तुझे बेहतरीन सांचे में डाला। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मेरे रब ने फरमाया, अगर इस सूरत में चाहे हमने तुझे तरतीब दे दी, लेकिन तू दुनिया वाला अपने माँ बाप की तो कदर करने वाला बना है, दुनिया की यारों और दोस्तों का कदर करने वाला है। अगर तूने कदर नहीं की तो उस रब की कदर नहीं की। इसने तुझे बनाया, इसने तुझे संवारा, इसने तुझे दुनिया के अंदर लेकर आया, उस रब का कदरदान नहीं बना। होना तो ये चाहिए था, जहाँ तू अपनी माँ की और अपने बाप की कदर करने वाला था, वहीं पर अपने रब का कदरदान बनता, अपने नबी का कदरदान बनता, अपने अल्लाह का फरमान बनता। उसकी एक आवाज़ पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती, दरबार में चला था, लेकिन नहीं, अल्लाह के कदरदान नहीं बने, दुनिया वालों के क्या हो रहा है बयान। आज इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर इकरार कर रहा है। कद्र तो बड़ी चीज है, नाफरमानी पर उतर आया, नमाजों का छोड़ना, अल्लाह बुलाए और एक ईमान वाला बंदा अल्लाह के दरबार में ना आए, ये कैसे हो सकता है। आज नाते नाते दुनिया जाए, एक बाप सीना ठोकता है, लोगों के सामने कहता है ये मेरा बच्चा है, ये गुटखा नहीं खाता, ये शराब नहीं पीता, ये सिगरेट नहीं पीता, ये कोई और नशा नहीं करता। हाँ, इतना जरूर है, ये नमाज नहीं पढ़ता। मेरे प्यारों, याद रखना, नमाज का न पढ़ना ये बड़ा जुर्म है, शराब का पीना ये छोटा जुर्म है, जिनादारी ये छोटा जुर्म है, और नमाज का छोड़ना ये बड़ा जुर्म है। आज लोग समझते हैं ये शराबी है, चलो इससे अलग किनारा किया जाए, इसकी बुराई ना की जाए, इससे वास्ता ना रखा जाए, इससे ताल्लुक ना रखा जाए, उससे बड़ा मुजरिम है अल्लाह की नज़र में नमाज का छोड़ने वाला। लेकिन उससे क्या खता ताल्लुक, हम लोग नमाज पढ़ने गए, कभी अपनी औलाद को जगाया, हम उसके कदरदान नहीं बने, ताजदारे मदीना की कदर करने वाले नहीं बने, अपने हबीब के कदरदान नहीं बने, जिन्होंने सारी जिंदगी उम्मत के लिए कुर्बान कर दी। उनका रोना, उनका बिलगना, उनकी याद में आज उम्मत ने सब भुला दिया। मैं हाँ ये कहना चाहूंगी, सहाबाए किराम की एक जमात ऐसी थी जिन्होंने अल्लाह की कदर की, ताजदारे मदीना की कदर की, इमामुल अंबिया के कदरदान बने, अल्लाह के कदरदान बने, और बल्कि कदर ही नहीं की, अल्लाह की और नबी की कदर का हक अदा करके दिखाया। ताजदारे मदीना आप सबों की दुरुस्त फरमाते हैं। एक जिनका वाक़या, एक मैं अपने दूध पीते बच्चे को नबी के दरबार में लेकर आई, फरमाया ये मेरा बच्चा है, इसे जिहाद में देना। अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बच्चा जिहाद कैसे करेगा, ये तलवार कैसे उठाएगा, ये कमान कैसे चलाएगा, मैं इसे ले जाकर क्या करूँगा। ताजदारे मदीना से उस औरत ने अर्ज़ किया, मैं भी जानती हूँ ये बच्चा तलवार नहीं चला सकता, ये किसी के काम नहीं आ सकता, लेकिन मैदान जिहाद में अगर कोई जालिम आप पर तीर चलाए, मेरे बच्चे को तीर की छांव में कर देना, आप सामने से बच जाना। अगर कोई तलवार चलाए, मेरे बच्चे को तलवार की छांव में कर देना, आप इस सामने से बच जाना। अभी ये तो जिंदा है, सच्चे तलवार से जंग ले सकते हैं, मगर आप कुछ हो गया आपको इससे बड़े कदरदान कहाँ मिलेंगे। ताजदारे मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
दिखाया। ये मेरे नबी की सुन्नत है, आका का तरीका है। आप जब भी कहीं फरमाते अपने बालों को दो साइड डालते, बीच की मांग निकालते, आधे बाल इधर आधे बाल इधर, ताजदारे मदीना की सुन्नत है। बीच की मांग निकालना साहबे रसूल है, बाल बड़े सख्त है, बीच की मांग नहीं निकलती। अब सोचने लगा नबी की सुन्नत को जिंदा कैसे करूं। आज का मुसलमान है कि नबी की सुन्नत को हटाने पर लगा हुआ है। अब सोचने लगा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा कैसे हो। एक लोहे की सरिया को लिया, आग को जलाया, उस आग के ऊपर लोहे की सरिया को लगाया। जब आईना सामने रखा, अपनी पीठ पर लोहे की सरिया को रखा, इस ख्याल से कि आग छूकर चली जाएगी, दोबारा इस जगह पर नहीं उठाएंगे। इस ख्याल होने में अपने सर को जला डाला, सिर में ऊपर जख्म हो गया। एक लंबे जमाने तक सर का जख्म रहा। जब वो ठीक होने लगा, आधे बाल इधर आधे बाल इधर, ताजदारे मदीना की दरबार में पहुंचा। अपनी टोपी को उतारा, नबी पाक अलैहिस्सलाम को दिखाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सर में चोट कैसे आई, ये सर में जख्म कैसे हुआ। सहाबी कहने लगा, आका मेरे सर में चोट कोई नहीं है, ये जख्म कोई नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर सर में हुआ क्या है। सहाबी कहने लगा, मैंने आपकी सुन्नत को जिंदा करने के लिए अपने सर को जलाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सर को जलाने का तो मैंने नहीं दिया था। सहाबी कहने लगा, आका वो सर किस काम का जिस सर में आपकी सुन्नत जिंदा ना हो। आका वो सर किस काम का जिस सर में आपकी सुन्नत जिंदा ना हो। हमसे तो कहा जाए नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है, तब भी हम निकलने के लिए तैयार नहीं। आका वो सर किस काम का जिस सर में आपकी सुन्नत जिंदा ना हो। आका वो सर किस काम का जिस सर में आपकी सुन्नत जिंदा ना हो। अंदाजा लगाओ हमारे सर कैसे हैं, हमारे चेहरे कैसे हैं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया से मिलते हैं या नहीं मिलते। ये सहाबा थे जिन्होंने कद्र की, अपनी तबीयत को नबी की तबीयत के मुताबिक बना डाला। आपकी औलाद होशियार औलाद हो, इजाज़त नहीं मिलता। एक रोटी खाता है, दूसरा नहीं खाता, एक गोश्त खाता है, दूसरा नहीं खाता। ये सहाबा थे जिन्होंने कद्र की, अपनी तबीयत को नबी की तबीयत पे उठा लिया। हजरत अनस इब्ने मालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम के खातिर और आपके गुलाम एक सहाबी फरमाते, मैंने अनस को देखा, वो हाथ डालता और रोटी के रूप में कद्दू के रूप में उठाकर खाता है, कद्दू के टुकड़े उठाकर खाता है। किसी ने मालूम किया अनस ये क्या करते हो। फरमाया, मैंने मोहम्मद को ऐसे ही खाते देखा, मैंने मोहम्मद को ऐसे ही खाते देखा। अपनी तबीयत को नबी की तबीयत के मुताबिक बना डाला। एक सहाबी रसूल है, अपना आलीशान मकान बनाया, ऊपर गुंबद बनाया। किसी ने कहा, आपने देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आगे वाले का इजहार फरमाया। किसी ने कहा, नबी घर से गुजरे थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया, उन्हीं के ऊपर गुंबद बनाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को ऐसा बनाना पसंद नहीं आया। अगला दिन आया, उस सहाबी ने अपने घर को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया। कुछ वक्त बाद मेरे नबी का गुजर हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा घर नहीं है, मैदान पड़ा है। सहाबी को बुलाया, फरमाया ये घर था, कहाँ चला गया। उस सहाबी ने तोड़ डाला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे बुला कर लाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे वहाँ बुलाया, फरमाया ये तेरा घर था, कहाँ चला गया। आका मैंने सुना था, पसंद नहीं आया। आका मैंने सुना था, पसंद नहीं आया। हमसे तो कहा जाए नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका है, तब भी हम निकलने के लिए तैयार नहीं है। आका मैंने सुना था, पसंद नहीं आया, इसलिए तो डाला। अंदाजा लगाओ को घर पसंद नहीं आया, हमारा नबी को क्या पसंद नहीं। हमारा चेहरा, हमारे लिबास, हमारे खाने के तरीके, हमारे शादी के तरीके, मुझे यारो हमारी जिंदगी का कौन सा ऐसा तरीका है जो नबी को पसंद है, कौन सा ऐसा तरीका जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं। ये सहाबा थे जिन्होंने कदर नहीं की, अपनी तबीयत को नबी की तबीयत के मुताबिक बना डाला। अपनी तबीयत को नबी की तबीयत के मुताबिक बना डाला। किस बार है?
یہ صحابہ تھی جنہوں نے خود کی اپنی طبیعت کو نبی کی طبیعت کے مطابق بنا۔ تاجدار مدینہ کو پسند نہ ہوا، میرے پیاروں سے اپنی زندگی سے نکال کر الگ کر دیا۔ آپ تو جانتے ہو دنیا کی ہر چیز مٹ جاتی ہے، عادت نہیں مٹا کرتی، بڑی مشکل ہے عادت کو مٹانا۔ نبی پاک علیہ السلام کا دور تھا، ان کے صحابہ کی عادت تھی شراب کا پینا، ان کی کھلتی میں داخل تھا۔ مہمان آیا شراب پلائی، مہمان آیا شراب سے مہمان نوازی کی، یہ صحابہ تھے۔ مہمان آیا شراب سے مہمان نوازی کی، یہ ان کی عادت تھی۔ لیکن جب رب کریم نے شراب کو حرام کیا، میرے نبی نے بلایا، فرمایا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ایک غلام آیا مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا چلا گیا، میں قربان جاؤں مدینے کی گلیاں ہو یا مکہ کی گلیاں ہو۔ جب لوگوں کو پتا چلا، اپنے مٹکوں کو گرایا، آخری گلاس تھے، گلاس میں گرا لے، مٹکوں میں شراب تھی، مٹکے پھول ڈالے، یہاں تک کہ اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا اور حلق سے باہر نکال ڈالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دربار میں صحابہ کی ایک جماعت آئی، آقا کیا یہ شراب کافی ہوگی؟ ہاتھ بیچ ڈالے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا پینا حرام، اس کا بیچنا بھی حرام۔ صحابہ نے لاکھوں کروڑوں کے مال کو آگ لگا دی، لیکن نبی کا حکم نہیں ٹکرایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ملا، اپنی عادت کو مٹا ڈالا۔ اندازہ لگاؤ جن صحابہ نے اپنی عادت کو نبی کی محبت پر قربان کر دیا ہوگا تو ان سے پوچھو کہ ہوتی کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ اندازہ تو لگاؤ، اپنی زندگی کو ٹٹول کرتے دیکھو، اپنے آپ کو تلاش کر کے تو دیکھو، ہم ہے کہاں، ہمیں بنایا کیوں گیا؟ ہمیں بنایا کیوں گیا؟ اللہ نے چار بڑے ستارے آپ کے کانوں پر سجائے، آپ کو امتوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا تھا کہ یہ امت نمازی، یہی امت، اللہ نے یوں ہی نہیں بنایا تھا کہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، شادی اور بیوہ میں جانوروں کی طرح کھائے۔ اللہ نے امتوں کا سردار یوں نہیں بنایا تھا کہ یہی امت اپنی تاڑیوں کو چھین کر نبی کے دل کو چھلنی کرے گی۔ اللہ نے امتوں کا سردار یوں نہیں بنایا تھا کہ نمازیں چھوڑو گے، شراب کے عادی بنو گے۔ نہیں نہیں، آخری وقت ہے، میرے نبی الصلوۃ والسلام کا علی فرماتے ہیں، آواز نہیں نکل رہی، میں نے کان لگایا، آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ وملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، نمازیں نہ چھوڑنا۔ آج مجھے یہ بتاؤ کون سا گھر ایسا ہے جس کے افراد میں نمازی نہ ہو؟ باپ نمازی تو بیٹا بھی نمازی، بیٹا نماز پڑھتا ہے تو باپ بھی نمازی۔ آخری وصیت ہے تمہارے حبیب کی، تمہارے لاڈلے کی، اور تم صاحب سے کو نہ مانو تو تم سے بڑا لاپرواہ ہوگا۔ صرف اللہ کے نبی کا تذکرہ کر لینا اور اس کے بعد اپنے آپ کو نہیں سمجھنا، میں سمجھتی ہوں میرے پیاروں میں کچھ نہیں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جب نبی سے محبت ہوگی اور اس کی الفت ہوگی اور اس کا ذکر بار بار کیا جائے گا، اس کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی پیروی کی جائے گی۔ اور اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کرنا، اور پیروی کہتے ہیں اس سے ایک قدم آگے۔ نبی نے حکم دیا یا نہیں دیا، نبی کو جو کرتے ہوئے دیکھا اس پر عمل کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی ہے۔ ایک صحابی آئے میرے نبی کے دربار میں، بطور صحابی کے دور سے آئے تھے۔ جب وہ میرے نبی کے دربار میں پہنچے تو میرے آقا کے گریبان پر بٹن کھلے ہوئے تھے، میں قربان جاؤں مجھے بٹن دیکھے۔ جب وہ واپس گئے صحابی رسول نے پوری زندگی کبھی اپنے گریبان پر بٹن نہیں لگائے۔ وہ فرماتے کہ میں نے نبی کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے بٹن نہیں لگے رہتے۔ یہ ہے پیروی، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرو، آپ کی پیروی کرو، آپ سے محبت کرو۔ میرے پیاروں اللہ کے واسطے نبی پاک علیہ السلام کی پیروی اور فرما برداری جب تک نہیں ہو سکتی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی نے تو خود فرمایا ہے، ابو سفیان یاد رکھنا دنیا کی تمام عزتیں میرے طریقے میں ہے، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے
अपनाया होता और पढ़ा होता और आपकी सुन्नतों पर अमल कर लिया होता तो आज जो हालत मेरी है ये हालत कभी मेरी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आवाज देती हूँ इकरा को कि वो आए और तकरीर पेश करे। इकरा माइक खा दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज साथियों, रब्बे कायनात ने अपना पूरा कुरान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल फरमा दिया। जब हम खुदा की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हमें पता चलता है इसमें किसी नबी की रिसालत का तस्वीर तो नहीं, किसी नबी की नबूवत का तस्वीर तो कहीं मुस्तफा की दिफन का तस्वीर तो नहीं, इसमत के चर्चे तो कहीं उनकी यादें की बातें तो कहीं उनकी जानिसारों की बातें तो कहीं उनकी जमाल बातें तो कहीं मुदस्सिर तो कहीं तवाफ बताएं। यही आसियान की अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और नाज़िल फरमा दिया। इसीलिए तो शायर कहता है, इसीलिए तो शायर कहता है, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही खुदा वही खुदा वही आसिफ वही तौहा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह ताला ने खुद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए प्यारे मोहब्बत का फैसला तो ये है, उल्फत की बात तो ये है कि तू हमें चाहता है, हम भी तुझे चाहते रहेंगे, कि तू हमसे प्यार कर, हम भी तुझे प्यार करेंगे, कि तू हमारी रहमत बयान कर, हम भी तेरी रहमत बयान करेंगे। ए मेरे प्यारे हबीब, तू हमसे मोहब्बत दे, हम तुझे अता करेंगे, तू हमारी तारीफ कर, हम भी तेरी तारीफ करेंगे। ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे महबूब, तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हमारी खुदाई करने की वजह करे, हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर तेरी मुस्तफाई करने की वजह करेंगे। मैं सिर्फ दो मिसालें देकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगी। मेरे अजीज साथियों, इस्लाम की बुनियाद कलमा है जो हम सब लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जरा से इस पर गौर कीजिए, अगर कोई शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता, क्या उसका कलमा मुकम्मल होगा? नहीं, हरगिज नहीं, उसका कलमा मुकम्मल नहीं होगा। मालूम हुआ कि जैसे कलमे के बगैर ईमान नामुकम्मल है, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कलमा नामुकम्मल है। थोड़ा आगे चलते हैं, जरा अज़ान पर गौर कीजिए। अगर कोई शख्स अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्य अला फलाह कहता है, क्या उसकी अज़ान मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज नहीं, उसकी अज़ान मुकम्मल नहीं होगी। अगर कोई शख्स पाक साफ होकर नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है, उसने सलाह पढ़ ली, उसने ताऊस तस्मिया सूरत इखलास रुकू भी किया, सजदा भी किया, लेकिन तशहद नहीं पढ़ा, क्या अब उसकी नमाज मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज नहीं। उसने मेरे नबी पर दुरूद नहीं भेजा, उसने मेरे नबी पर सलाम नहीं भेजा। अब आप सब लोग बताइए, क्या उसकी नमाज मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला ने खुद अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए प्यारे मोहब्बत का मसला तो ये है, उल्फत का निज़ाम तो ये है, जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा जिक्र होगा। कब्र में मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा, नमाज में मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा, अज़ान में मेरा जिक्र होगा, फिर तेरा जिक्र होगा। ए मेरे प्यारे हबीब, ए मेरे प्यारे महबूब, जहाँ जहाँ मेरी खुदाई के तज़किरे होंगे वहाँ वहाँ तेरी मुस्तफाई के तज़किरे होंगे। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ में करना चाहूंगी। जुनूने इश्क से तो खुदा भी बच न सका, ये जुनूने इश्क से तो खुदा भी बच न सका, बस मोहम्मद ने सारा कुरान लिख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आइए अजीजों, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि अब मैं आवाज देने लगी हूँ एक ऐसी शख्सियत को कि जिनकी आवाज कानों में रस घोल देती है, और जब वो गुफ्तगू करती है तो दिलों को सुकून मिलता है। मेरी मुराद है अलीमा अपनी से, कि वो आए और तकरीर पेश करे। अलीमा अपनी माइक
बैठो जरा मैं। ये फ्रेम थोड़ा पीछे करो या इसको आगे करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज माँ और बहनों, ठीक 9:30 बजे से लेकर आपने दीन की बातें तिलावत कलामुल्लाह नाती नबी समाज फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमारी इन इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं भी आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगी। उससे पहले चंद आशार है जिनमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पेश की गई है। मेरा दिल चाहता है मैं चंद आशार पेश करूं। मोमिना बोलो बस तेरा, मोमिना बोलो बस तेरा, रब्बे सल्ली वसल्लिम अलैहि मना हो रसूले खुदा है रसूले अनाम पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम बड़े बड़े मोहतरम हैं मुअज़्ज़िज़ हैं बड़े बड़े मुस्लिमों मुजस्सिम हैं वो सब रसूलों हैं जिनका आला मकाम उन पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम उन पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम जिनकी आमद से जन्नत सजाई गई वास्ते जिसकी दुनिया बनाई गई जिसने ला दिया जिंदगी का निजाम उन पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम उन पे लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम। अल्लाह ताला बेशुमार रहमतें बरकतें आप पर नाज़िल फरमाए। बेकरे हुस्न बेहतरे मोहतरम मुअज़्ज़िम है वो, बेकरे हुस्न नूरे मुजस्सिम है वो। अल्लाह ने अपने हबीब को अपने लाडले को ऐसा बनाया कि दुनिया में किसी को बनाया ही नहीं। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो जानते हो क्या हुआ? हज़रत आमिना की नजर पड़ी, देखकर क्या फरमाने लगी, ऐसा बच्चा मेरी नजरों ने नहीं देखा। हज़रत हलीमा तशरीफ लाई, फरमाया आमिना आपकी नजरें कहाँ से देखती? मैं घर घर चक्कर लगाती हूँ, इलाके इलाके जाती हूँ, गलियों गलियों फिरती हूँ, मेरा जाने कितने इलाकों से गुजरी हूँ, आज तक मेरी नजरों ने ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत मुतालिब आगे बढ़े, फरमाया ऐ तुमने क्या देखा है? मैंने मुल्के शाम देखा है, मैंने यमन देखा है, मैंने इराक देखा है, मैं ना जाने कितने मुल्कों में गया हूँ, लेकिन आज तक मेरी नजरों ने ऐसा बच्चा नहीं देखा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैंने अपना लाडला उतारा है, हबीब उतारा है, जा जरा तुम देख करा मेरा हबीब कैसा है, मेरा लाडला कैसा है। ताजदारी मदीना इमाम अंबिया को देखने के लिए जिब्रील की आमद हुई। जिब्रील ने जब नजर डाली हैरत में पड़ गए। अल्लाह के दरबार में हाजिरी दी, रब ने मालूम किया, देखकर चला आया मेरा हबीब कैसा लगा, मेरा मोहम्मद कैसा लगा, मेरा मुस्तफा कैसा लगा। अब कहता है जिब्रील कहता है मौला मैंने मुल्क शाम देखा है, मैंने यमन देखा है, मैंने इराक देखा है, लेकिन मौला तेरे लाडले जैसा ना पाया, तेरे हबीब जैसा ना पाया, तेरे मुस्तफा जैसा ना पाया। अब कहता है जिब्रील तेरी निगाहें कहाँ से देखती, जिब्रील तेरी निगाहें कहाँ से पाती, जिस साजे में मैंने अपने हबीब को बनाया, जिस साजे में मैंने अपने लाडले मुस्तफा को डाला, बनाने के बाद वो साजा ही डाला। और हज़रत हसन क्या फरमाते हैं, आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं, वह हसन करम कराकार होगी, आज तक देखा ही नहीं, आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं जैसा अल्लाह ने अपने हबीब को अपने लाडले को दुनिया में उतारा। अच्छा होता क्या है जब कोई इंसान पैदा होता है, जब कोई बच्चा दुनिया में आता है, उसकी तारीख शुरू होती है समाने उसके पैदा होने के बाद से और उसके मरने तक। ये जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानी आपकी जिंदगी इस दुनिया में शुरू नहीं हुई, बल्कि ताजदारी मदीना की सवानी आपकी जिंदगी आपके हिस्से को अल्लाह ने अलामा पर रखी। अल्लाह ने एक जलसा किया जिसमें सारे इंसानों को इकट्ठा किया, फरमाया
आए, कोई तुम आए और तो अल्लाह से सवाल करे, तेरा सवाल पूरा ना हो, तेरी मुश्किल आसान ना हो। मेरे बेटे तू जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तू रुका नजराना पेश करना, अल्लाह तेरी पुकार को सुनेगा, अल्लाह तेरी दुआ को सुनेगा। हजरत शीश ने फरमाया अगर ना सुनी तो क्या करेगा? हजरत शीश ने फरमाया अब्बा आप इंसानियत के अब्बा हो। ये मोहम्मद कौन है? फरमाया बेटा तू नहीं जानता, मैं जन्नत से होकर आया हूँ, कोई दरवाजा ऐसा नहीं जिस पे मेरे नामे मोहम्मद का लिखा यो अज़मत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ने बनाई। अल्लाह ने ये जलसा उस वक्त किया, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, आपसे मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले दुनिया में आए। मैं आपसे कहूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हो? जी हाँ, कब से करते हो? जब से आपको देखा है, जब से आपसे मिले हैं। मेरे पैदा होने से पहले क्यों नहीं की? क्योंकि आप आए नहीं थे। ताजदारी मदीना से मोहब्बत करने वाले दुनिया में वो अफराद है, ताजदारी मदीना से मोहब्बत करने वाले दुनिया में वो अफराद है, ताजदारी मदीना से मोहब्बत करने वाले दुनिया में वो अफराद है। आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह ने मोहब्बत दिलों में डाल दी। आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह ने मोहब्बत दिलों में डाल दी। याद होगा आपको वो भाई बादशाह यमन का, उसका बेटा यसरब सरजमी पर आया शिकार खेलने के लिए, लोगों ने उसे पकड़ा और कत्ल कर दिया। अब्बा को जब पता चला मेरे बेटे का कत्ल हो गया है, इसने इंतकाम के लिए एक लश्कर को तैयार किया और मदीने पर चढ़ाई का इरादा किया। ये सभी सर बाहर आकर खड़े हुए, अपने सिपाहियों से कहा यहाँ पर ऐलान कराओ, यहाँ की गलियों में ऐलान कराओ, बात कि अपने बच्चे का इंतकाम लिया जाएगा, अपने बेटे का इंतकाम लिया जाएगा। अब्बा ने ऐलान कराया, ये सभी सर चारों तरफ लोगों ने भी मैदान दिए। रात जब होने लगी, मदीने वालों ने यसरब वालों ने खाने पकाए, पकाने के बाद उस तुफाई नामी बादशाह को अपने लश्कर को लाया था, उसके दरबार में लेकर पहुंचे। फरमाया ये खाना है, इसे क़यामत फरमाओ। कहने लगा मैं तुमसे लड़ने आया, तुमसे जंग करने आया, तुमसे क़िताल करने आया और तुम मेरी मेहमान नवाजी करते हो। फरमाया भले भी तू हमसे जंग करने आया, हमसे क़िताल करने आया, हमसे लड़ने आया, लेकिन है तो मुसाफिर, है तो तुम मुसाफिर, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम तेरी मेहमान नवाजी करें। तो बने अपने यहूदी उलमा को बुलाया और उलमा से कहा ये बस्ती वाले अजीब हैं, मैं इससे लड़ने आया, इससे क़िताल करने आया, इससे जंग करने आया और ये मेरे सामने दस्तरखान बिछाकर मुझे खाना खिलाते। उन यहूदी उलमा ने अपनी किताब खोलकर देखने के बाद फरमाया तुब्बा उस सरजमी को मिटा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के नबी तशरीफ लाएंगे। तुब्बा को जब पता चला कि यहाँ पर अपने नबी तशरीफ लाएंगे, अल्लाह ने ताजदारी मदीना की मोहब्बत तुब्बा के दिल में डाली। अच्छा यहाँ पर अल्लाह के अपने नबी तशरीफ लाएंगे, चलो इस जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं। उसने उस जमीन को लिया, अपने पैसों से घर बनवाया, एक खत लिखा और उस वक्त का मासिक आदमी उसे बुलाया, मैं ये खत तेरे हवाले करता हूँ, ये खत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचना चाहिए और ये खत उनके हवाले होना चाहिए। मैं ये खत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता हूँ। और सदियां गुजर गए, सालों गुजर गए। उसके बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीने की जानिब आए। जब आपकी उठनी हज़रत अय्यूब अंसारी के घर के सामने रुकी, आप अय्यूब अंसारी के घर में जाकर बैठे। दुनिया वाले आपको यही जुमला सुनाते होंगे कि हज़रत अय्यूब अंसारी के घर में जाकर नबी ने बयान किया, बल्कि ये मैं कहती हूँ कि हज़रत अबू बकर अय्यूब अंसारी ने नबी के घर में जाकर बयान किया। ताजदारी मदीना का धब्बा ये तुब्बा ने बनवाया, ये तुब्बा ने बनवाया था। जब आपने वहाँ पर कदम रखा, आप वहाँ अफरोज हुआ। ताजदारी मदीना ने फरमाया मदीने वालों लाओ वो खत लेकर आओ, जो तुब्बा ने मेरे लिए भिजवाया था। मदीने वाले कहने लगे या रसूल अल्लाह अब हम मान गए, अब हम वाकई मान गए, आप अल्लाह के सच्चे रसूल। हजरत अबू बकर चले गए, ताजिर से कब्रों की ज़ियारत किया करते थे। जब आप वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात एक यहूदी आलिम से हुई। काम से जब फारिग हो गए, सोचने लगे इन यहूदी आलिम से मुलाकात कर ली जाए। किसी ने बताया 100 साल से ज्यादा की उम्र है, बड़े नेक आदमी है। हजरत अबू बकर के दरबार में पहुँचे, देखते क्या है पूरा चेहरा सफेद है, दाढ़ी सफेद है, कान के ऊपर सफेदी है, आंखों की भवें सफेद है, पूरा चेहरा सफेद हुआ है। हजरत अबू बकर से मुलाकात की, हजरत अबू बकर से फरमाया तू कहाँ से आया? मैं मक्का से आया। अच्छा तेरा नाम अबू बकर तो नहीं
तशरीफ नहीं लाए, आपके आने से पहले आपकी मोहब्बत में दुनिया वालों का ही हाल हो गया। और जब आप तशरीफ ले आए, फिर देखो अल्लाह ने क्या अज़मत दी है, क्या फजीलत दी है, अल्लाह ने क्या अज़मत दी है, क्या फजीलत दी है। ताजदारी मदीना की मोहब्बत करने वाले पानी दे दो, पानी नहीं मैं कब सोच रही बच्चे नज़म पढ़ लेना, बैठी बैठी सोच रही ऐसे इंसान कोई छुट्टी नहीं देता है। अल्लाह ने क्या अज़मत दी है, क्या फजीलत दी है। क्या अज़मत दी है, क्या फजीलत दी है। इतना अजीम पैगंबर मुझे और आपको इनायत किया, मुझे और आपको इनायत किया। रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरे ज़िक्र को ऊंचा किया, तेरे लिए ऊंचा किया। ये काम रब का था, रब ने कर लिया। बंदों की जिम्मेदारी थी कदरदानी करना। अफसोस ये है कि हमने उस रसूल की कदरदानी नहीं की। उस नबी की सीरत सुनने से, उस नबी के वाक़यात सुनने से मेरा और आपका फायदा होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत नहीं बढ़ेगी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने अपना काम कर दिया। साइंस कहती है इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया में कहीं ना किसी वक्त किसी जगह बारिश के खतरात गिरते हैं। साइंस ने ये भी लिखा अगर दुनिया में कहीं बारिश ना पड़े तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा। ये उसूल है दुनिया का, ये तो साइंस ने लिखा। मैं कहती हूँ अगर अल्लाह के नाम के साथ जनाब रसूलुल्लाह का नाम ना लिया जाए तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा। यही वजह है साइंस ने ये भी लिखा कोई सेकंड ऐसा नहीं गुजरता जिसमें अल्लाह के नाम के साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिया जाए। अल्लाह ने उस नबी की अज़मत को इतना अभी अजान हुई, अल्लाह का नाम लिया गया, फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया। उनकी अज़मत तो इतनी बड़ी है कि अल्लाह ने कुरान में क़स्में खाई, वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह ने आपके चेहरे की क़स्में खाई, वल्लैली इज़ा सजा, अल्लाह ने आपके जुल्फ़ों की क़स्में खाई। यासीन कुरान हकीम, ये सूरह यासीन है। अभी दुनिया बनी ही नहीं, अभी दुनिया का निज़ाम बना ही नहीं। दुनिया बनाने से पहले 1000 साल दुनिया बनाने से पहले सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। रब ने फरमाया यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, इन्नका लमिनल मुरसलीन, इन्नका लमिनल मुरसलीन। और मेरा रब कहता है मेरे लाडले तू मेरा रसूल है। ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा तकरीर फरमा रहे थे, बड़ी शानदार तकरीर अपने हवारीन के दरमियान। एक हवारी खड़ा हुआ, फरमाया हुजूर आप इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया का तज़किरा कर रहे हैं, क्या उनकी अज़मत आपसे भी बढ़कर है? क्या अल्लाह तबारक व तआला के दरबार आलिया में उनका मकाम बहुत ऊंचा है? हज़रत ईसा ने फरमाया अपने दिलों की तकदीर का लिखता जाना, आज हमसे उस रसूल की कदरदानी नहीं हुई। उस रसूल का कदरदान ना मैं बना ना तुम बने हो, बल्कि उस रसूल की कदरदानी इतनी होनी चाहिए थी जिंदगी का कोई हिस्सा खाली ना रह जाए जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कोई दिल ऐसा नहीं जिसमें नबी की मोहब्बत मौजूद ना हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज में अपनी दिल की तकलीफ का लिखता हूँ, आप भी लिखिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ हवारीनो मेरे मानने वालों, तुम उस नबी की अज़मत की बात करते हो, अगर ईसा इब्न मरियम को उस नबी के जूतों के तस्मे को हाथ लगाने का मौका मिल जाए तो ये ईसा इब्न मरियम के लिए फख्र की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ईसा इब्न मरियम को उस नबी के जूतों के तस्मे को हाथ लगाने का मौका मिल जाए तो ये ईसा इब्न मरियम के लिए फख्र की बात है। और हम क्या है उसकी उम्मती है ना। रब ने फरमाया लितकुन शुहदा, कल क़यामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक उम्मती की सभा करी ही होगा, हमारी बख्शिश कर दी जाए। अल्लाह नबियों को खड़े करेगा, उम्मतें इनकार करेगी तेरे नबी ने तेरे रसूल ने हम तक पैगाम ना पहुंचाया। अल्लाह इस वक्त गवाह बनाकर किसी नबी किसी और को पेश नहीं करेगा। ये एहसास उम्मती मोहम्मदिया को मिला, उम्मती मोहम्मदिया को पेश किया जाएगा। उम्मती मोहम्मदिया कहेंगे मौला तेरे नबियों ने तेरे रसूलों ने अपनी उम्मत तक पैगाम पहुंचाया, अल्लाह तुम्हें गवाह बनाकर पेश करेगा। ये एहसास तुम्हें मिला, किसी और उम्मत को ना मिला। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने जब छटाई फरमाई, छाट कर हर एक इंसान
अब दूसरी तरफ और कभी जब अल्लाह ने हमें इतना अजीम पैगंबर दिया, हमारी जिम्मेदारी घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है ना। लायो में अगर दिल में औलाद ज्यादा बढ़ती हो, ये रसूल का इश्क नहीं है। अगर दिल में दुनिया वालों की मोहब्बत ज्यादा और रसूल की मोहब्बत नहीं है, अगर दिल में अपनी जान की मोहब्बत ज्यादा और दुनिया वालों की मोहब्बत नहीं है और रसूल की मोहब्बत नहीं है, ये मेरा फतवा किसी देवबंद का फतवा, किसी बरेलवी का फतवा नहीं है, ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। मेरी मोहब्बत तुम्हारी जान से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा, तुम्हारे घर बार से ज्यादा नहीं है। तो याद रखना, नबी ने फरमाया, तो याद रखना, अपने आप को मोमिन कहना गवारा ना करना, ये जरूरत ना उठाना कि मैं मोमिन हूँ। नबी ने फरमाया, मोमिन नहीं हो सकता जिसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत से ज्यादा दुनिया वालों की मोहब्बत पलती हो। इसी की जमीन में एक बड़ा प्यारा वाक़या हज़रत उमर का नक़ल किया हुआ। हज़रत उमर गुजर रहे हैं, ताज़दारी मदीना ने रोका, फरमाया उमर इधर आओ। उमर को बुलाया, फरमाया उमर क्या तेरे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत है? जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी औलाद से ज्यादा, मेरे माँ बाप से ज्यादा, मेरे माँ बाप से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत मौजूद है। ताज़दारी मदीना ने फरमाया उमर जरा ये तो बता, क्या तेरी जान की मोहब्बत से ज्यादा मेरी मोहब्बत तेरे दिल के अंदर मौजूद है? अभी इस तकाज़े का इल्म नहीं था। हज़रत उमर ने तवक्कुल किया, अपने किरदार में झांका, अपने सीने में झांका, झांककर सर उठाया, फरमाया या नबी अल्लाह, अभी इस बात का पता ना था, लेकिन अब मेरे दिल के अंदर आपकी मोहब्बत बढ़ गई है, मेरी जान से ज्यादा आपकी मोहब्बत बढ़ गई है। नबी ने फरमाया अल-आनिया, अब आकर तेरा ईमान मुकम्मल हुआ, अब तक तेरा ईमान मुकम्मल ना था, अब आकर तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। अब मुझे जरा ये बताइए, क्या नमाज का छोड़ने वाला मोमिन कहलाएगा? ज़कात का न देने वाला क्या मोमिन कहलाएगा? नबी से मोहब्बत करने वाला नमाज का पाबंद होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला ज़कात का पाबंद होगा, नबी से मोहब्बत करने वाला पांच वक्त कर करेगा, नबी से इश्क करने वाला रोज़ों का पाबंद होगा, नबी से इश्क करने वाला आपकी चाल ढाल अपनाएगा, नबी से मोहब्बत करने वाला आपके तरीके अपनाएगा, नबी से मोहब्बत करने वाला आपके उठने बैठने का तरीका अपनाएगा, नबी से मोहब्बत करने वाला आपके मीठे अल्फाज अपनी जिंदगी में उतारेगा। अफसोस ये है कि हम तमाम तर चीजों से बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत पीछे। एक रोज मैंने आके कहा, माँ बाप हो मेरे तुम पे फिदा, हर चीज से ज्यादा चाहूं तुम्हें, पर जान से ज्यादा न चाहूं तुम्हें। ऐलान नबी ने फरमाया, हर आम वक़ास को बदलाया, जब तक ना हो इश्क़ नबी ईमान तुम्हारा मुकम्मल नहीं, जब तक जान से ज्यादा इश्क़ नबी ना हो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। चंद टकों का कमा लेना, एक आलिशान घर बना लेना, एक लंबे मोबाइल का होना, ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि दुनिया वाले आपकी इज्जत की नजरों से देखे, अपना अखलाक, अपना किरदार, अपनी ज़बान के बोल को इतना मशहूर बना लिया है कि आपके देखने वाला, सामने वाला आपके बारे में गलत तसव्वुर करता है। एक ज़माना वो था, उस ज़माने के फकीर फुकरा के अंदर भी गैरत थी, गैरत ईमानी थी। ताज़दारी मदीना की दिन की अहमियत मौजूद थे। आज का ईमान वाले, खाने वाला, पीने वाला, ताज़दारी मदीना की दिन की अहमियत तो मौजूद ही नहीं, ताज़दारी मदीना की दिन की अहमियत तो मौजूद नहीं। एक अंग्रेज आया जमा मस्जिद के किनारे, उसने एक फकीर को पैसे दिए, पैसे देके चलता बना, उसका बड़ा नीचे गिर गया, उस फकीर ने उठाया, अपनी आवाज दी, वो भीड़ में गुम हो गया। सोचा दूसरे दरवाजे से आएगा, वो आ ना सका। एक साल के बाद दोबारा आया, इस फकीर ने उसको देखा, इस अंग्रेज ने मुझे पैसे दिए थे, उसको बुलाया, उसके हाथ में उसका पर्स थमाया। अंग्रेज ने एक नजर पर्स को देखा, एक नजर फकीर को देखा, वो कहा ये क्या है? ये तेरा पर्स है, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसमें इतने पैसे थे, इतने डॉलर थे, अगर तू चाहता एक आलिशान घर बनाता, अपना बिजनेस करता, अपना कारोबार करता, लेकिन तूने मुझे ये वापस क्यों किया? मैंने ये इसलिए वापस किया, कल क़यामत के मैदान में तेरे न कहीं ऐसा ना हो, तेरे नबी ईसा मेरे नबी के दरमियान में आए और कहे तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का जेब